Good morning, every one of you. Very, very good morning. Sir, you can teach continuously. We will write notes afterwards. Yes, that's what I am telling in the last class. है ना? Because teaching में मजा नहीं आता है, flow disconnect होता है ना इसलिए. Good morning. Sir, we will write notes afterwards. Yes, okay, okay, beta. आई एम वेटिंग बच्चों एक्चुअली सर जब क्लास खत्म होगा तब नोट्स ग्रुप पे भेजो. आई एम एवरी टाइम मैं भेज रहा है ना. ओनली वन डे मैं थोड़ा बाहर गया आउट ऑफ टाउन. एक ओनली वन टाइम आई मेड डिले बट रिमाइनिंग ऑल द टाइम्स आई एम सेंडिंग. वेन एवर आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर तुरंत में भेज रहे. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा. आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. हमारा क्लास स्ट्रेंथ 67 है ना. दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली वेटिंग. जस्ट 2-3 मिनट्स में विल स्टार्ट. ओके, 2-3 मिनट्स. Yes, good morning. Oh, it's 9:50. I think we can start. What do you say, बच्चों? But students are not there. सर आपका बियर्ड गायब. मेरा बियर्ड गायब. Someone stolen my beard. पुलिस कंप्लेंट भी दिया, पता है आपको? आई एम लुकिंग डिफरेंट है. अरे यार ऐसे कैसे होता है? सिर्फ बियर्ड ओनली नॉट देयर बट रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. नहीं ऐसा नहीं. नो, ड्यू टू लॉकडाउन है ना. आई डिड नॉट लाइक ज़्यादा आई डिड नॉट थिंक. लॉकडाउन में ऐसे ही छोड़ दिया. एंड ऑलमोस्ट लॉकडाउन इट इज़ गेटिंग फिनिश्ड. मे बी इन 1.5 month में some good news may come. We may meet you. We may meet like very soon, maybe 1.5 month, because the rate of corona है ना, it is थोड़ा coming down. And not only that, basically some vaccines, new vaccines are also DRDO also
released a kind of vaccine. Okay, so this all works. So 1.5 month में we may get a good news that unlock. हाँ, बॉलीवुड में मैं क्यों, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एज अ टीचर, एंड यू नो टीचिंग इज माई पैशन एक्चुअली. सो मैं ये छोड़ के मैं किधर भी नहीं जाएगा. या बच्चों आई विल स्टार्ट करूँ क्या, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वी वेटेड मोर देन 5 minutes. हाँ, सो आई थिंक टाइम हो गया स्टार्ट करने के लिए. ओके ना, देखो, in the last lecture we started the first kingdom children. The first kingdom is Monira. Okay, whereas in this Monira mein we in the last lecture I started discovery. Who discovered, first of all, just a small question, for the first time who discovered the bacteria? First time, first time who discovered bacteria? हिंट दो क्या, हिंट दो मैं, डच लेंस मेकर. Yes, Arya gave the correct answer. Anton von Leeuwenhoek, and he gave the name animalcule. Okay, now small question, very small question. Who gave the name bacteria? Bacteria नाम कौन दिया? Yes, Ehrenberg and Kuhn. Ehrenberg and Kuhn. ओके, नेम थोड़ा अजीब है ना, बट 2-3 बार ऐसा ही लगता है, बाद में आदत हो जाएगा. एंड बच्चों दिस इज जस्ट बिगिनिंग. व्हेन यू आर गोइंग ना, कितना कितना वॉटिकल साइंटिस्ट का नेम्स आता है, एंड दीज नेम्स आर स्टिल मोर अजीब. अंडरस्टैंडिंग इट, और मोर अजीब लगता है आपको. अंडरस्टैंडिंग इट, बेसिकली दिस आर ऑल नॉट इंडियन ओरिजिनेटेड साइंटिस्ट ना, इसलिए नेम्स थोड़ा आपको अलग अलग दिखता है, अजीब अजीब दिखता है. अंडरस्टैंडिंग इट, एरेनबर्ग एंड कुहन. ओके, now this all discovery we explained in the last class. Now today's class mein what we will start, you know, classification of Monera. Monera kingdom, again Monera kingdom is again classified into 3 groups. What are the 3 groups bachcho? The first group, it is called as Eubacteria. What is that bachcho? Eubacteria. Now the second group, it is called as Archaebacteria. Archaebacteria. And the last one, it is called as Cyanobacteria. What is that bachcho? Cyanobacteria. That cyanobacteria only you will call BGA. सर ये क्या है सर, पहले बार सुना. BGA मतलब ब्लू ग्रीन आल्गे, दैट्स इट. और कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं बेटा. ओके, BGA मतलब ब्लू ग्रीन आल्गे, ब्लू ग्रीन algae, BGA. Understand it? So these are the 3 groups of monerans. Understand, major groups of monerans. Like this, Monera, it is also having some small groups. Understanding it? What are the small groups? Mycoplasma, Rickettsia, थोड़ा नेम थोड़ा अजीब है, रिकेट्सी. और एक बार बोलेगा सेफ्टी के लिए, रिकेट्सी. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिनोमाइसिटिस. सर ये क्या है सर? व्हाट आर दिस 3? दीज आर माइनर ग्रुप्स. दीज आर व्हाट? माइनर ग्रुप्स. ओके सर, ये पहले वाला क्या है सर? ये ऊपर वाला, दीज आर मेजर ग्रुप्स. दीज आर व्हाट? मेजर ग्रुप्स. ओके सर, डिफरेंस क्या है? मेजर ग्रुप मतलब क्या है, माइनर ग्रुप्स मतलब क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ज्यादा सोचना मत बच्चों. मेजर ग्रुप मतलब इसमें द नंबर इज मोर. बच्चे अंडरस्टैंडिंग इट, देयर नंबर ज्यादा है. माइनर ग्रुप्स मतलब क्या है? उसका नंबर, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, थोड़ा नंबर बहुत 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 कम रहेगा. Understanding it, the group in which the members, the number of the individuals are very very less, then that is called as a minor group. And the group in which the members are more wide and they are spreading in every place, then that is called as major group. इतना है, और ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों. अंडरस्टैंडिंग इट? कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? तन्वी टोल्ड एस, और ज्यादा कुछ भी नहीं. मेंबर्स ज्यादा है, मेजर ग्रुप. मेंबर्स कम है,
small group, that's it, और कुछ भी नहीं है. Okay, now, and in this we have to, the Monira mein we have to read eubacteria also, yeah, particular archaebacteria also, cyanobacteria also. Today shall we start eubacteria, children? We'll start eubacteria. Okay, now eubacteria, पहले we will take some characteristics. That means eubacteria members में क्या क्या characteristics दिखता है. Let us see, understanding it. So eubacteria, first thing, basically these eubacteria members are so simple, वेरी वेरी सिंपल रहता है, अंडरस्टैंडिंग इट, एंड मोस्ट प्रिमिटिव. सर सिंपल तो मुझे पता है सर, बॉडी में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो सिंपल. सर ये क्या है सर मोस्ट प्रिमिटिव, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मोस्ट प्रिमिटिव मतलब थोड़ा पुराना आदमी लोग हैं, एंड मेरा जैसे, अंडरस्टैंडिंग इट. सो मैं, प्रिमिटिव मतलब थोड़ा पुराना वाला है, अंडरस्टैंडिंग इट. सो एंड दे आर यूनिसेलर, ऑफ कोर्स ऑल द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलर ओनली ना, सो इसके ऊपर इतना ध्यान no need, understanding it. So the first characteristic is the monirans are very simple and primitive and unicellular prokaryotes. Okay, point 1 understood, children? Point 1. Okay, now point number 2. The point number 2 is, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दिस क्वेश्चन है ना, सेकंड पॉइंट, इट इज आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम. ओके, नीट एग्जाम पता है ना बच्चों, यार एमबीबीएस क्वालिफिकेशन के लिए वी नीड टू टेक एन एग्जाम कॉल्ड नीट. दैट नीट में 720 मार्क्स के लिए नीट एग्जाम रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इट. इसमें 90 क्वेश्चंस दे कम फ्रॉम बायोलॉजी, 45 questions come from your chemistry, and 45 questions comes from your physics, understanding it. So total 45 plus 45 and 90, and 90 plus 90 कितना बच्चों? 180 questions रहेगा, understanding it. And this every question के लिए 4 marks. Now 100 into 80 is equal to 180 plus 4 is equal to what? 720 marks. Okay, ये नीट का वेटेज है, अंडरस्टैंडिंग इट. सर वी वांटेड टू बिकम डॉक्टर ना सर, सर मिनिमम कितना आना है बच्चों? याद रख, इफ यू गेट 630 प्लस, ओके 600 प्लस भी चलेगा, बिकॉज रिजर्वेशंस वगैरह होता है ना, एंड यू विल बी द मोस्ट सेफेस्ट आदमी, अंडरस्टैंड. या इसमें बॉटनी 45 एंड जूलॉजी 45. ओके, ज्यादा बॉटनी में को थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस ज्यादा आता है एग्जाम, बट कट टू कट नहीं आएगा बच्चों. सी देखो, काउंट गिन गिन के बॉटनी में 45 जो ऐसा नहीं रहेगा, कट टू कट नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स बॉटनी में 47-48 क्वेश्चंस भी आता है, बिकॉज बॉटनी चैप्टर्स आर मोर. दैट मीन्स मैं इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली बोल रहे, यू हैव टू टॉलरेट मी मोर देन राकेश सर, अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज राकेश सर टेक्स जूलॉजी ना, so zoology topics are little less than botany topics, understand? That means you need to have a lot of patience because you are tolerating me, है ना. चलो I am just joking. Yeah, now this sir weightage bio का, yeah obviously, yeah basically your MBBS मतलब क्या है? You have to deal with what? Life मतलब biology, so biology ज्यादा है, understanding it, biology ज्यादा है, understanding it. Now, and in one more thing also, children, you need to understand this, otherwise क्या लगता है ना children को, हाँ I have taken biology मतलब मेरा जिंदगी only NEET. बच्चों ये सब नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग इट. बायोलॉजी में यू हैव मेनी ऑप्शंस, अंडरस्टैंडिंग इट. मान लो इफ यू वांटेड टू बिकम डेंटिशियन, यू कैन बिकम डेंटिशियन, नो नॉट ओनली एमबीबीएस. ओके, एमबीबीएस का साथ डेंटिशियन इज देयर, फार्मेसी इज देयर, अंडरस्टैंडिंग इट. एंड सर बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट में, yes biology is very important, whereas agriculture you can do, understanding it, and biotechnology, and पूरा दुनिया बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा वर्ल्ड अभी बायोटेक्नोलॉजी का पीछे ही है, बिकॉज कोरोना वायरस हु इज producing biotechnology plants, understanding it, biotechnology hubs, understanding it. So biotechnology, okay, and microbiology you can read, understanding it, and biostatistics you can read, genetics, okay, research you can do. So don't think that मेरा जिंदगी में only MBBS से टारगेट है, ऐसा नहीं बेटा. So find your interest, आपको इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ, अंडरस्टैंडिंग इट. चलो, now the second point is the most important point is second point. Now
द सेल वॉल, बच्चों मान लो दिस इज बैक्टीरिया, सर एग्रीकल्चर करने के लिए भी नीट, यस नहीं एग्रीकल्चर करने के लिए नीट नहीं देना है, बट एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन करना। सर एक एग्जांपल बोलिए बच्चों, एर्लियर राइस क्रॉप्स पता है ना, चावल का क्रॉप, अंडरस्टैंड इट, आई एम टेलिंग एग्जांपल, एक एग्जांपल बोल के मैं एंटर इनटू द लेसन, सिर्फ एक ही एग्जांपल है, राइस क्रॉप। नाउ Indian population is only 80 crores. Okay, 35 years back, that means my age is 35, 35 years back, understand, जब मैं when I'm so small, that time what Indian population is 80 to 90 crores, but देखो कितना बढ़ गया, just in 30 years में 120 crores, to be frank 120 plus crores. That means what happened, you know, basically organisms, that means the individuals are increasing. For that this rice is modified, that means I rice research institute है ना, rice research institute, Indian rice research institute, IRRI, understanding it, now it developed IR8, बच्चों what is that IR8 strain of rice? Sir what is this IR8? It's a modified strain. Okay, it is a modified strain. ये मॉडिफाइड स्ट्रेन का फायदा क्या है सर, बाय दिस मॉडिफाइड स्ट्रेन द क्रॉप का यील्ड ज्यादा हो गया, अंडरस्टैंड इट, नाउ इट्स अ स्पेशलाइजेशन, आप अच्छा नया नया स्ट्रेन्स इफ यू वांटेड टू डेवलप, देन यू हैव टू डू द एग्रीकल्चरल बीएससी, है ना, मेरा बेटी कर रहे हैं माय स्टूडेंट, या गोल्डन राइस, या करेक्ट, गोल्डन राइस, ओके, वन ऑफ माय स्टूडेंट दिव्या, यस, मेरा मेरा बच्चा, मेरा बेटी है, दैट माय स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स माय स्टूडेंट्स आर मेरा बेटी ओनली ना, सो ऑल यू आर माय, यू आर लाइक माय चिल्ड्रन ओनली, अंडरस्टैंडिंग, लाइक ना, यू आर माय चिल्ड्रन, ओके, सो दिव्या इज डूइंग व्हाट आई कॉल microbiology, one you are senior, okay, one of my student, okay, okay children, so समझ में आ गया, so if you wanted to develop a new strains, then go for agricultural BSc, okay, now if you take the bacteria, the body, for example, how the plant cells are covered by cell wall, like that bacteria body is also covered by the cell wall, and plants में the cell wall it is made up of what, cellulose, है ना बच्चों, like that in bacteria में the cell wall it is made up of peptidoglycan. What is that बच्चों, children, what is this peptidoglycan? Okay, the cell wall it is made up of peptidoglycan, peptidoglycan, understanding it, नेम थोड़ा अजीब है ना, but still आप याद रखना है because it is important question which is already asked in your NEET exam, understand, you already asked in your NEET exam. Now so safety के लिए I'm asking you, the cell wall of the bacteria is made up of dash, yes, understanding it, and that peptidoglycan is also called as murin, it is also called as what is the other name of peptidoglycan बच्चों, murin is the other name of peptidoglycan, okay बच्चों, where membrane bound cell organelles are completely absent. Sir ये क्या है sir, what is the meaning of membrane bound बच्चों, mitochondria, chloroplast, lysosome, these are all cell organelles है ना, these all cell organelles are absent in बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में यू कैंट बी एबल टू सी एनी सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट एक ही सेल ऑर्गेनल, एक ही सेल ऑर्गेनल इट इज प्रेजेंट, दैट इज नथिंग बट राइबोसोम्स, okay, एक ही सेल ऑर्गेनल, दैट इज नथिंग बट, अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम्स नो एनी अदर सेल ऑर्गेनल कैन बी सीन in the cell of bacteria. बच्चों 3 points I explained, any doubts in these 3 points you ask, any doubt, if you don't have doubts or 3 points लेता है मैं, और 3 पॉइंट्स लेता है, क्लियर, एवरीवन आर टेलिंग क्लियर, सर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और नो, नो गौरव, no nucleus, that point I'll explain, don't worry, I am here now, I'll explain, no don't worry, sir second point explain, okay, second point I will explain once again, देखो बच्चों, the bacterial cell, मान this is a bacterial example के लिए मैं बोल रहा, मान लो this is a bacterial cell, now the bacterial cells they are covered by cell wall, okay बच्चों, and the cell wall it is made up of a material, and this material it is called as peptidoglycan. For example, मान लो this is a plant cell it is covered by the cell wall which is made up of a substance called as cellulose, ये तो पता है ना children,
like that. The bacterial cell wall, it is made up of peptidoglycan. It's a substance beta, it is a substance. समझ में है ना? कश्यप एंड तन्वी, बच्चों समझ में है ना? The bacterial cell walls are made up of what? A substance, a material called as peptidoglycan. Okay बच्चों? Now और 3 पॉइंट्स लेता है, अभी तक 3 पॉइंट्स लिया ना, और 3 पॉइंट्स लेता है. Now the fourth point is the bacteria, it show various types of what nutritions. For example, you take some bacteria, they depends upon the dead and decaying organic matter, and the bacteria which is depending upon dead and decaying organic matter for the food, and that bacteria, it is called as saprobes. What is that बच्चों? Saprophytes or saprobes, you write anything, no problem. Saprobes you write, saprophytes you write, इसमें फर्क नहीं है, वर्ड्स आर डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम. बच्चों समझ में ना? सैप्रोफाइट समझ में ना? और एक बार बोलो, मैं समझ में? ओके, वेरी गुड. एंड सम आर पैरासाइट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट बच्चों? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन होस्ट एंड क्रिएट डिसीजेस. बच्चों यू अंडरस्टैंडिंग इट? द ऑर्गेनिक, द बैक्टीरिया विच डिपेंड्स अपॉन अदर्स and causes diseases, and that particular bacteria are called as parasites. बच्चों पैरासाइट समझ में है ना? पैरासाइट समझ में ना? Okay, now the next one is some are chemotrophs. सर ये क्या है? chemotrophs मतलब क्या है? The organism which prepare their own food, but for the preparation of food they depends upon chemicals. They depends upon what? Chemicals. So the organisms which prepare their own food but they utilize some chemicals to prepare their own food, then that is called as chemotrophic. And photoautotrophic, बच्चों photoautotrophic मतलब the organisms which can prepare their own food but depending upon light. By depending upon light they are preparing their own food material, then they are called as photoautotrophic. Okay, sir, I can't see the screen, please स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भेजो. स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है. ओके, बट कैसे भेजो मुझे पता नहीं, कैसे भेजना है बच्चों? बच्चों कैन एनीवन हेल्प मी? मुझे स्क्रीनशॉट लेना मुझे पता है, बट कैसे भेजना है मैं? या थैंक यू ज्ञानेश्वरी, थैंक यू, मेरा काम आप इजी किए. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, ना एंड द नेक्स्ट वन इज सर आकांक्ष, आकांक्षा सर ने पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया. ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू बच्चों, नो प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज the organisms that may be symbiotic also. बच्चों symbiotic मतलब give and take policy. Okay, the association which though organisms are present and both the organisms are equally benefited, then that is called as symbiosis. Okay, nutrition सबको समझ में है ना बच्चों? सबको, all the children understood a nutrition? Yes. Okay, now if you really understand, if you सच में समझ में आएगा तो सर साइड पे होता है ऑप्शन सेंड करना के लिए. ओके आई लर्न. मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जमता नहीं, मेरे सेलफोन का बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट आई लर्न. I don't disappoint you. I'll definitely learn. Okay. Now tell me if you really understand what do you mean by symbiosis. Symbiosis मतलब क्या है? You understood ना? Then बोलिए. Symbiosis मतलब क्या? Yes, give and take policy. That means दोनों organisms are equally benefited. The association in which दोनों organisms are equally benefited. Understood बच्चों? Then that is called as what? The symbiosis. Okay. Kashyap is Kalpesh is asking common relationship. बच्चों common relationship is they are most of the bacteria are saprophytic and parasitic. These are very common and remaining all are rare. Yeah, your question is like your question is good question. Okay, common relationship is saprobes. Most of the bacteria, मान लो 100% of bacteria में more than 90% of bacteria saprophytes and parasites, and only 10% only chemotrophic, phototrophic and symbiotic. Okay, okay children, can I take fifth point children? Lou में fifth point
आपको समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना बच्चों? प्लीज आस्क, कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज आस्क, ओके, फील फ्री टू आस्क, okay, never hesitate to ask that particular teacher, okay, teacher is like your parent only, so don't hesitate, okay. Now the fifth point is, थोड़ा ध्यान से सुनना है, बिकॉज फिफ्थ पॉइंट इज थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए आप अच्छे से सुनना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. इफ यू टेक इफ यू टेक द बैक्टीरिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो दिस इज अ बैक्टीरिया, एंड मान लो दिस इज हमारा सेल and this is bacterial cell and a hamara cell, that means eukaryotic cell. बच्चों eukaryotic cell, if you take eukaryotic cell में center में you can be able to say nucleus, बच्चों न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस का अंदर डीएनए विल बी प्रेजेंट. बच्चों अंडरस्टूड? न्यूक्लियस का अंदर डीएनए इज प्रेजेंट, बट इन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड डीएनए इट इज फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अंडरस्टूड बच्चों? बच्चों और एक बार बोलूं क्या सेफ्टी के लिए? बच्चों सेफ्टी के लिए और एक बार बोलूं क्या? वेरी सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज. मान लो दिस इज हमारा सेल, बच्चों ये हमारा सेल, हमारा खुद का बॉडी का सेल, एंड हमारा बॉडी में अंदर न्यूक्लियस विल बी देयर, एंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए विल बी देयर. बट बैक्टीरिया में ऐसा नहीं. Now this is a bacterial cell. Bacterial cell में nucleus is absent. In the cytoplasm only you can be able to see the DNA, because nucleus it is not, because the DNA it is not covered by any nucleus or nuclear membrane. It is freely present in the cytoplasm. That's why the bacterial DNA it is called as a naked DNA. बच्चों अंडरस्टूड? बच्चों वो सच में समझ में ना? as the DNA is not covered by any nuclear membrane, that's why the bacteria nucleus bacteria DNA it is called as a naked DNA. which DNA बच्चों? naked DNA. and this naked DNA it is called as nucleoid. okay nucleoid. न्यूक्लियोइड नेम थोड़ा अजीब है ना, बट फिर भी न्यूक्लियोइड मतलब क्या है? नेकेड डीएनए. ओके, फिफ्थ पॉइंट सबको समझ में आया ना चिल्ड्रन? फिफ्थ पॉइंट सबको समझ में आ गया ना? सिक्स पॉइंट लू क्या? सिक्स पॉइंट लू. ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट के लिए आई विल टेल यू वन सिंपल एग्जांपल, वेरी स्मॉल एग्जांपल. नाउ अभी स्क्रीन में समृद्धि दिख रहे हैं मुझे, अंडरस्टैंड इट. नाउ समृद्धि बेटी, यू गो एंड ब्रिंग डस्टर. देन मान लो आई एम टेकिंग, दिस इज माय क्लासरूम एंड टुडे आई फॉरगॉट डस्टर, एंड बेटा समृद्धि यू प्लीज गो एंड ब्रिंग माय डस्टर बिकॉज मैं भूल गया. देन समृद्धि क्या करेगा? तुरंत शी विल गेट अप एंड शी विल गो टू द स्टाफ रूम, एंड स्टाफ रूम से शी विल ब्रिंग द डस्टर सो दैट आई कैन कंटिन्यू माय लेसन. दैट मीन्स इधर क्या, ये एग्जाम्पल है, आपको क्या समझ में आया? नाउ she is there in one classroom and staff room or थोड़ा दूर है, मान लो this is staff room. Now when I told her beta please can you bring the duster, then immediately she got up and पैदल से she walked and she went to the classroom, no sorry staff room, and staff room से again she took the duster and again पैदल से she walked and again reached the classroom, है ना? दैट मीन्स ये एग्जाम्पल में आपको क्या समझ में आ रही है? शी यूज्ड हर लेग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एम आई करेक्ट और नॉट? समझ में ना? एंड एक जगह से दूसरा जगह इफ शी इज मूविंग, एंड दैट मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. ओके, लोकोमोशन. अंडरस्टैंड बच्चों? लूज मोशन नहीं है, इट्स लोकोमोशन. ओके, अब आप है ना, बी केयरफुल. ओके, इट्स लोकोमोशन, इट्स नॉट लूज मोशन. ओके, लोकोमोशन मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज द मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. ओके बच्चों? ओके, एंड लोकोमोशन के लिए some organs, for example I took अभी स्क्रीन में मुझे साक्षी दिख रहे हैं, एंड फॉर बच्चों सेम एग्जांपल में साक्षी आई आस्क्ड टू ब्रिंग द डस्टर, शी यूज्ड हर लेग्स टू मूव, दैट मींस हर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर लेग्स. समझ में ना चिल्ड्रन? हर लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर लेग्स. Understanding it or not? Like that, bacteria consisting of a whip like a hair like structure, उसका बोलता है हम flagella, and with the help of flagella she will move from one place to another place. बच्चों समझ में ना? I think I explained clearly. I am thinking you must have understood.
बट आप बोलना है, मैं नहीं, मुझे जो बोलेगा मुझे सब अच्छा ही लगता है. Okay, so for locomotion bacteria will show flagella. Okay, now sixth point. Now this 3 points, pehle 3 points mein you told you don't have any doubts. Now I explained 3 more points. This 3 more points many doubts are there. Fourth, fifth, sixth point many doubts you can ask. Otherwise और 3 points में लेता है, और 3 points I'll take. No, fourth point you want me to explain? फोर्थ पॉइंट इज, बेटा फोर्थ पॉइंट है, देखो न्यूट्रिशन. बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग द फूड मटेरियल. एम आई करेक्ट? बैक्टीरिया इफ यू टेक, दे मे टेक द फूड मटेरियल by depending upon the dead and decaying organic matter, and the organisms which depends upon dead and decaying organic matter, then they are called as saprobes. Understood children? समझ में है ना? समझ में ना? Whereas the next one is parasitic. Parasitic मतलब they depends upon others and create diseases. And create what बच्चों? Diseases. Then that is called as parasites. And yes, decomposes. Yes, Razia, correct. Beta, you are perfect. The process of intake of the food and consuming it for various biological activities is called nutrition. Yes, you are perfectly correct. Janesh, Sakshi, you are perfectly correct. And chemotrophic matlab they can prepare their own food material by depending upon some chemicals, then that is called as chemotrophic. Phototrophic matlab they can prepare their own food material by depending upon light, then that is called as what? Phototrophic. And symbiotic matlab they depends mutually upon each other, they depends mutually upon each other, then that is called as symbiotic. फोर्थ पॉइंट आई रिपीटेड कल्पेश के लिए. बेटा कल्पेश आपको समझ में आया? यस, अंडरस्टूड. नाउ आई एम टेकिंग 3 more points. अभी तक 6 points मैंने खत्म किया, बट प्लीज वेट हाफ ए मिनट बिकॉज आई हैव नो स्पेस टू राइट, दैट्स वाई आई वांटेड टू रब. यस आकांक्षा करेक्ट. फोटोट्रॉफिज्म मतलब द मूवमेंट or response towards mitotic spindle. Not understood. I did not even explain only. Then how do you understand? बोलिए, बोलो बोलो. I did not explain only. कैसे कैसे समझ में? बोलो, है ना? I explained only till 6th point. I did not take the 7th point. Then it is the 8th point. आपको कैसे समझ में आएगा? है ना? So I told any point this is ज्यादा हो गया. I told till 6th point, है ना? Till what I explained. ज्यादा हो गया. Now let us take the 7th point. Now the 7th point is reproduction by asexual. बच्चों इधर most basically one thing you need to understand. Bacteria में male bacteria, female bacteria won't be there. अंडरस्टैंड इट. ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल होता है. अंडरस्टैंड इट. मेल बैक्टीरिया जीन पैंट पहन के एंड फीमेल बैक्टीरिया साड़ी पहन के नहीं आते. अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? बैक्टीरिया डोंट हैव एनी जेंडर डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट. जेंडर डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, याद रख. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई बैक्टीरिया में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टेक्स प्लेस. मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टेक्स प्लेस. समझ में ना बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टेक्स प्लेस. पॉइंट समझ में ना? और एक बार बोलूं मैं, और एक बार बोलना है? नो, रजिया शी इज टेलिंग दैट शी अंडरस्टूड. ओके चलो, कैन आई टेक द 8th पॉइंट चिल्ड्रन? 8th पॉइंट लू क्या? ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज सर गैमेट्स. या गैमेट्स आर एब्सेंट. अरे मेल है तो मेल गैमेट, फीमेल है तो फीमेल गैमेट. फॉर एग्जांपल मेल है, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म. फीमेल गैमेट क्या है? ओवा. ऐसा. अरे पहले में क्या बोल रहे हैं? मेल ओनली फीमेल ओनली नॉट देयर ना, देन हाउ गैमेट्स विल बी देयर? है ना? एम आई करेक्ट और नॉट? विल यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट और नॉट? सो देयर आर नो गैमेट फॉर्मेशन. ओके, no gametes. Okay, now the 8th point, and someone asked this question also. Mitotic spindle मतलब बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा ध्यान से सुनो. वेरी इजी, आपको पक्का समझ में आएगा, बट थोड़ा ध्यान से सुनना है. मान लो दिस इज सेल, एग्जांपल के लिए मान लो दिस इज सेल. ओके, नाउ मान लो these are chromosomes. Now these chromosomes
एट द टाइम ऑफ डिवीजन बच्चों, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ना, याद रख। तो मैं क्या बोल रहा थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो पक्का समझ में आएगा, सिर्फ आप अच्छे से सुनना है, अंडरस्टैंडिंग इट। एट द टाइम ऑफ डिवीजन देर आर सम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टिक जैसा, there are some stick like structures that are formed. They are called as spindle fibers or mitotic spindle fibers. You can call anything, spindle fibers you call, or mitotic spindle fibers you call, फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग इज सेम, अंडरस्टैंडिंग इट। सो सेंट्रियोल्स नहीं बेटा, सेंट्रियोल्स दे कंट्रोल दिस स्पिंडल फाइबर्स। सर सेंट्रियोल्स क्या करेगा, आई टोल्ड स्पिंडल फाइबर्स आर स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दिस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रियोल, समझ में ना, ओके। Now this stick like structures will be formed, and what they will do now, they will pull this particular chromosome to the opposite poles. Understood children, understood? और एक बार बोलो मैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए और एक बार बोलो मैं, देखो सेफ्टी के लिए और एक बार बोलेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। आई थिंक नाउ ओनली अंडरस्टूड, बट स्टिल सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। मान लो दिस इज सेल बेटा एंड दिस इज द क्रोमोसोम, मान लो दिस इज क्रोमोसोम, ओके, इधर तक समझ में ना। एंड this chromosomes they need to pull towards opposite side है ना, they need to be, cell division मतलब क्या है, whatever the contents that are present in the cell they will be divided into two, am I correct? cell division मतलब क्या है, देखो मान लो cell it divides into two, that means whatever the cell consisting of it has to be divided into two, correct only na. Now these chromosomes are also need to divide it into two, correct only na. For this division there are some stick like structures that are formed, these are called as spindle fibers or mitotic spindle fibers, you can call anything, and they will pull this particular chromosomes towards the opposite poles, इतना ही और कुछ भी नहीं। Whereas in bacteria में this mitotic spindle formation is absent. चिल्ड्रन समझ में ना, हर्षदा, माइटोसिस डिवीजन एंड फॉर्म्ड एट प्रो, या करेक्ट, यू आर करेक्ट, ओके। 8th पॉइंट सबको समझ में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आस्क्ड दैट पॉइंट एंड शी हैज टू अंडरस्टैंड बिकॉज शी टोल्ड माइटोटिक स्पिंडल, साक्षी, साक्षी बेटी समझ में ना, यस। नाउ द लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, ओके, लास्ट पॉइंट मतलब डोंट थिंक लास्ट पॉइंट, ये स्लाइड में लास्ट पॉइंट, लास्ट sir, fourth step of mitotic cell division na, yeah, fourth step, yeah, actually spindle fiber starts from first step only beta, 4 steps mein first step में spindle fiber formation takes place, first step में चालू होता है, okay। Okay, and Janeshwari she's asking sir then how chromosomes move to opposite side, मान लो this is one spindle fiber and this spindle fiber it will be cut into half, मान this is one chromosome है ना, this chromosomes they cut into half, then when it cut into half एक chromosome 2 chromosome हो जाएगा ना, and this chromosomes, this cut chromosomes will be pulled towards what, opposite sides, इतना ही सिंपल। ज्ञानेश्वरी बेटी समझ में है, समझ में है ना, ज्ञानेश्वरी के लिए वेट कर रहे, ओके, यस। ना द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड, ये स्लाइड में लास्ट पॉइंट, दैट इज 9th पॉइंट बच्चों। इफ यू टेक द 9th पॉइंट इन मोनीरा, देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, इन मोनीरा सम मोनीरा हैज अ कैपेसिटी, व्हाट इज दैट कैपेसिटी, यू नो दैट कैपेसिटी इज एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, पता है ना बच्चों, एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, ये तो आई थिंक एवरीवन ऑफ अस नो, बिकॉज ये है ना 6th क्लास 5th क्लास में वी विल टेल, अरे एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, है ना, ये पता है ना बच्चों, this you know, in atmosphere nitrogen is present 78%, that is gas forming, but problem क्या है ना, हम we are there ना, organisms cannot be able to use nitrogen in gaseous form, उसको सॉलिड फॉर्म में चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इट सर। सॉलिड फॉर्म में क्या, नाइट्रोजन का सॉलिड फॉर्म सर, नाइट्रोजन का सॉलिड फॉर्म सर नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, then we can be able to use, understanding it. So especially nitrogen, it is present in gaseous form, organisms cannot be able to use, understanding it, they need to be converted into nitrites and nitrates। very easy example में आपको, today you wanted to have ब्रिंजल का फ्राई,
ओके, सो विद दाल। नाउ यू टेल मी, ब्रिंजल आप ऐसा ही खा सकते हैं क्या? ब्रिंजल नीड टू बी कुक्ड, अच्छा से पकने के बाद उसको फ्लेवर आता है, लाइक दैट नाइट्रोजन इज लाइक अ रॉ ब्रिंजल एंड नाइट्रेट्स आर लाइक द पकाने के बाद टेस्टी ब्रिंजल। अभी समझ में है ना? आई टोल्ड ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, समझ में ना बच्चों? एंड दिस कन्वर्शन के लिए, एंड दिस कन्वर्शन इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों व्हाट इज दैट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। Understanding the process of conversion of atmospheric nitrogen to nitrites and nitrates called as nitrogen fixation. And some monera has the capacity of nitrogen fixation. 9th point समझ में ना बच्चों? all bacteria नहीं बच्चों, all bacteria नहीं, some bacteria has the capacity for nitrogen fixation. Okay, now I completed, sir, rhizobium. Yes, Sakshi, perfect example, you gave the perfect example. Yes, perfect example दिया Sakshi, rhizobium example. Okay, now slide 1 में yeah, Azotobacter and what do you call Pseudomonas and Azolla and like that, many bacteria are there, so many bacteria are there. Okay, sir, for the purpose of pulling the chromosome towards opposite poles called spin. Yes, correct, क्षितिजा only ना? Yes, correct. Now first slide में 9 points I told, अभी तक first slide में 9 points I told. ये 9 points में any दिक्कत is there, or can I confidently take the next slide? Yes, then I am taking the next slide. Okay, the next slide is, sir, last point. Tanvish is asking last point is, beta हमारा एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। कितना परसेंटेज बच्चों? 78% ऑफ नाइट्रोजन। बट प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, ये 78% इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, बट ऑर्गेनिजम्स का अंदर कैपेसिटी नहीं है टू यूज द gaseous nitrogen. So the gaseous nitrogen need to be converted into nitrites or nitrates, and this conversion is called as nitrogen fixation. Some bacteria has capacity to convert the nitrogen. Okay, the capacity to do nitrogen fixation. तन्वी बेटे समझ में है ना? Got it. Very nice, very nice. Now shape. बच्चों ज्यादा हो गया क्या बच्चों? I did not realize ज्यादा हो गया क्या? चलो मैं और 15 मिनट लूं क्या? दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? यस, कंफर्टेबल ना? यू मस्ट बी कंफर्टेबल, अदरवाइज बाउंसर्स आएगा तो नो, यू शुड नॉट, बाउंसर्स नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज शेप. बच्चों वन थिंग you need to understand, bacteria it exists in many shapes, that you need to understand. Bacteria it exists in many shapes, but जितना shapes हम नहीं पढ़ सकते हैं ना, and पढ़ने जरूर भी नहीं है, to be frank. That's why we have taken main four shapes of what we call bacteria. Mainly the bacteria it exists in four shapes. What are they? The first one it is spherical matlab round, गोली जैसे, understanding it. If the bacteria they are present in round, then that shape it is called as cocci. बच्चों understood? cocci मतलब क्या? The bacteria which are round shaped, that bacteria are called as cocci bacteria. Okay, ओके, कंफ्यूजन नहीं है ना? नो कंफ्यूजन ना? बैक्टीरिया वो गोल गोल जैसा होता है ना, दैट बैक्टीरिया कॉकाई बैक्टीरिया. वेयर एज द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट रॉड जैसे ऐसा रॉड जैसे दिखता है ना, एंड दे आर कॉल्ड एज बैसिलाई बैक्टीरिया. विच बैक्टीरिया? बैसिलाई बैक्टीरिया. वेयर द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन कॉमा शेप बैक्टीरिया, देन दैट इज कॉल्ड एज विब्रियो बैक्टीरिया. Which bacteria बच्चों? Vibrio bacteria. Whereas the bacteria which are present spiral binding book में spiral white color spiral होता है ना, that spiral जैसे spring जैसे दिखता है ना, that spring like bacteria they are called as what? Spiral bacteria. So these are the four shapes of bacteria. So bacteria it exists in four shapes. What are they? Round shape cocci, rod shape bacilli, comma shape vibrio, spring shape spiral bacteria. Is this चलेगा बच्चों? Is this okay? Yeah. Now बच्चों first shape, the first one it is nothing but coccus. Coccus मतलब
राउंड, गोली गोली जैसे दिखता है, अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ दिस राउंड बैक्टीरिया, इट इज ऑफ 6 टाइप्स। इट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स बच्चों? 6 टाइप्स। व्हाट आर दे? मैं आपके लिए ये लेके आया, आई ब्रॉट ओनली फॉर यू ओनली। ये देखने के पक्का समझ में, मैं पक्का बोल रहे 100% आपको समझ में आएगा ना। पूरा बैक्टीरिया बॉडी में एक ही गोली इज देयर, एक ही व्हाट सर्किल इज देयर, देन दैट इज कॉल्ड एज मोनोकोकस। सी, देखने में समझ में आता है ना, देन सीइंग, अंडरस्टैंड, देन रीडिंग। सी, इफ यू सी लाइक दिस, आपको समझ में आया ना। सी, पूरा बॉडी में एक ही गोली है, देन दैट इज कॉल्ड एज मोनोकोकस। नो नो नो, बॉडी में two goalies are there, that means two sphericals are there, two rounds are there, then that is called as diplococcus। बेटा समझ में ना, डिप्लोकोकस समझ में ना। इफ द बॉडी में 2 सर्किल्स आर देयर, देन डिप्लोकोकस। नो नो नो, बॉडी में एक ही सर्किल इज देयर, देन मोनोकोकस। ओके, नो, बॉडी में 4 सर्किल्स आर देयर, देन दैट इज कॉल्ड एज टेट्राकोकस। बच्चों समझ में ना, टेट्राकोकस। ओके, वेर एज बॉडी में 8 सर्किल्स आर देयर, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा ध्यान से सुनो। 8 सर्किल्स आर देयर, बट दे आर प्रेजेंट लाइक ए क्यूब, दे आर प्रेजेंट लाइक ए क्यूब। बच्चों समझ में ना, दे आर प्रेजेंट लाइक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दे आर प्रेजेंट लाइक ए क्यूब, दे आर प्रेजेंट लाइक ए क्यूब, क्यूब जैसे दिखता है, अंडरस्टैंडिंग इट। 8 सर्किल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रेजेंट लाइक ए क्यूब, देन दैट इज कॉल्ड एज सार्किना, then that is called as what? Sarkina। बच्चों समझ में आ रहे हैं? और मैं आपको अननेसेसरली कंफ्यूजन कर रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोकस एंड बच्चों, कोकाई मतलब प्लूरल, कोकस मतलब सिंगुलर, इतना ही, और कुछ भी नहीं है। ओके, कोकाई मतलब प्लूरल, दैट्स इट। ओके, ना इधर तक समझ में ना बच्चों? मोनोकोकस मतलब सिंगल सर्किल इज प्रेजेंट इन द बॉडी, डिप्लोकोकस मतलब 2 सर्किल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, टेट्राकोकस मतलब 4 सर्किल्स आर देयर इन द बॉडी, एंड 8 आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रेजेंट लाइक ए क्यूब, देन दैट इज कॉल्ड एज सार्किना। इधर तक समझ में ना? 4 टाइप्स I told। Now fifth type, if many circles are present, so many circles are present, but they are present like a grapes। grapes पता है ना, sometimes है ना, children है ना, grapes ऐसा पकड़ के ऐसा खाता है ऊपर से, understanding it। so they don't ऐसा ऐसा एक एक निकल के नहीं खाएगा। some children understanding it, they पूरा ऐसा उठा के ऐसा ऐसा खाता है, understanding it, like that grape bunch जैसे दिखता है, then that is called as स्टेफाइलोकोकस। नाउ टेल मी बच्चों, स्टेफाइलोकोकस मतलब क्या? बच्चों स्टेफाइलोकोकस मतलब मेनी सर्किल्स आर प्रेजेंट, दे आर अरेंज्ड लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। यस, देखो आकांक्षा बेजा, आकांक्षा बेजा देखो, ग्रेप्स ग्रेप्स जैसे दिखता है, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेफाइलोकोकस। वेयर एज मेनी सर्किल्स आर प्रेजेंट, बट दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए चेन। चेन चेन पता है ना, चेन, दे आर प्रेजेंट like a chain, then that is called as streptococcus, then that is called as what? Streptococcus। so 6 टाइप समझ में ना बच्चों? कोकस 6 टाइप समझ में ना? 6 टाइप्स। any doubts you please ask। okay, now you only told clear, मैं नहीं बोला ना, आप खुद ही बोला ना, so मुझे डाउट है, you have to clear। okay, why don't know what is sarkina? who will explain? देखता है sarkina मैंने भूल गया, then who will tell? Sarkina। Yes, very good. Nice. See, Sushmita gave answer, Razia gave answer, Harshada gave answer. Very good. Very good. Okay. Now, yes, cube-like bacteria. Cube-like bacteria. Understanding it? Now, the next one, Bacillus। बैसिलस बच्चों, बैसिलस मतलब मैं आपको बोला ऑलरेडी, सो रॉड जैसे दिखता है बैक्टीरिया ना, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैसिलस बैक्टीरिया। रॉड 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 जैसे दिखता है, then that is called as what? Bacillus bacteria। Again, Bacillus bacteria, it is of so many types, it is of what? So many types। what are the so many types? The first one, it is called as monobacillus। बच्चों, what is the meaning of monobacillus? पूरा बॉडी में एक ही रॉड, सी देखो एक ही है ना, दिख रहा है ना आपको क्लियरली? मैं आपके लिए इंटरनेट में ढूंढ ढूंढ के हम लेके आया, अंडरस्टैंड? ये मेरा क्रिएशन है, इतना क्रिएटिव तो मेरा मुंह को नहीं है, अंडरस्टैंड? ये पूरा जादूगर इंटरनेट में डाउनलोड किया मैंने, understood? So this is monobacillus।
एक ही रॉड, नो नो नो, टू आर देयर, दैट मीन्स बॉडी में टू रॉड्स आर देयर, सी देखो एक दो, देन दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोबैसिलस। ओके ओके बच्चों, वेयर एज द रॉड एक एलिप्ट लाइक अंडा जैसे ऐसा है, ऐसे देखो रॉड ऐसा होता है ना, देन दिस इज व्हाट बैसिलस, एंड रॉड है ना एक अंडा जैसा है, देन दैट इज कॉल्ड कोको बैसिलस। बच्चों कोको बैसिलस मतलब क्या है, इट लुक्स लाइक रॉड बट उसका एंड्स है ना थोड़ा राउंड शेप दिखता है, देन दैट इज कॉल्ड कोको बैसिलस। बच्चों कोको बैसिलस समझ में है ना, कोको बैसिलस समझ में है ना। ओके नाउ पैलिसाइड मतलब इफ द रॉड्स दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, एक रॉड एंड दूसरा रॉड एंड तीसरा रॉड एंड फोर्थ रॉड, इफ दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड देन दैट इज कॉल्ड व्हाट पैलिसाइड। एंड स्पोर फॉर्मेशन नहीं है, ये गलती में आ गया, अंडरस्टैंडिंग इट बिकॉज इंटरनेट में डाउनलोड किया ना, दैट्स व्हाई मे couldn't be able to cut this unnecessarily, this is unnecessary, okay, please don't read this. And next one is what, streptobacillus. Streptobacillus matlab rods are present side by side like a chain, rods are present side by side like a chain, then that is called streptobacillus। बच्चों समझ में है ना, बच्चों समझ में आया। ओके ना, आपको आप खुद ही बोल रहे हैं ना समझ में आया, देन आई हैव वन डाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिसाइड, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, देन हु विल हेल्प मी, मुझे कौन हेल्प करेगा, पैलिसाइड मैंने भूल गया, हु विल हेल्प मी। यस, रॉड्स विच आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, एक का सामने दूसरा, यस वेरी वेरी गुड। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वन बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, टेल मी। विब्रियो, कॉमा शेप्ड, अंडरस्टैंड, देखो देखो कॉमा जैसा ही दिख रहा है ना, सो इफ द कॉमा जैसा है देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, विब्रियो बैक्टीरिया, वेयर एज स्पाइरल बैक्टीरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया बच्चों, सी देखो स्पाइरल जैसे, ओके देखो दिख रहा है ना, स्पाइरोकिट्स, स्पाइरल बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड, दीज आर स्पाइरल बैक्टीरिया। सो शेप्स समझ में है ना चिल्ड्रन, बच्चों शेप्स सबको समझ में है ना, ना विद दिस टुडे वी विल स्टॉप, ओके बच्चों। और और ताकत है तो आई कंटिन्यू, एक और एक लेता है, आपको आपको ताकत है तो कंटिन्यू, पक्का है ना, बाउंसर्स नहीं आ रहा ना, एक सिर्फ एक ही लेता है, इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली सी, वो एक ही स्लाइड, दैट्स इट, सिर्फ एक ही स्लाइड। ओके ना, न्यूट्रिशन, ओके कंटिन्यू, या आई एम रेडी टू कंटिन्यू, बट सी why I'm asking every time ना सर, टाइम है, why you don't continue, सी बच्चों टाइम नहीं, अंडरस्टैंडिंग में 2 घंटा 3 घंटा लेता है, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यूज क्या है, दैट्स वाई वी शुड नॉट टेक द टाइम एज अ मार्क, वी शुड नॉट टेक हमारा कैपेसिटी एंड हमारा अंडरस्टैंडिंग एज अ मार्क। ओके हमारा टारगेट है ना अंडरस्टैंड, ओके नॉट टू फिनिश द टाइम, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay now the next one is what, nutrition। बच्चों nutrition I already told you many types of nutritions are there, okay many types of nutritions are there, okay the first type of nutrition is autotrophic nutrition। बच्चों autotrophic nutrition मतलब no voice, ऐसा कैसे होता है, no 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 my voice is clear, no my voice is clear, क्या हुआ अचानक क्या हुआ, I think problem from her side, from not my side। Yeah okay I think she has to like कुछ तो करना है, okay now now autotrophic, बच्चा autotrophic मतलब क्या है, the organisms which can prepare their own food material, the organisms which can prepare their own food material, then that is called as autotrophs, and the bacteria which can prepare their own food material, that is called as autotrophic bacteria। okay समझ में ना बच्चों, where as sir we have to write this, no 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 hey, no so, I brought for your understanding it, you have to write till here only, इधर तक ही लिखना है, ओके
इधर तक ही लिखना है, ओके इधर तक। सर ये सब क्या है सर? व्हाई यू ब्रॉट देन ऑल व्हेन देन वी डोंट नो ऑन टू राइट ना, देन व्हाई यू ब्रॉट? अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड, okay? So these are all examples, these are all what? Examples, okay? Okay, now let us take autotrophic bacteria. Autotrophic bacteria, again it is of two types. What are the two types? The bacteria which use light for preparing the food material, the bacteria which is using light to prepare the food material, then that is called as phototrophic bacteria. Which bacteria bachcho? Phototrophic bacteria. So the bacteria, it is utilizing light to prepare its food, then that is called as phototrophic bacteria. Whereas the bacteria which are using chemicals to prepare their food material, then that is called as chemotrophic bacteria. Which bacteria बच्चों? Chemotrophic bacteria. समझ में ना चिल्ड्रन? ओके सर, पीडीएफ में मार्क करके भेजो कि हमने, बाप रे इतना हिंदी, बाप, आई एम गॉन। इतना हिंदी मुझे समझ में नहीं आते। यू आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम मी। इतना इतना दिमाग मेरे पास नहीं है, ओके ओके, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। चलो ना, लेट अस टेक फॉर, इट मीन्स पीडीएफ में भी ऐसा लिखने, लाइन कर, ओके ओके, यू वांट मी टू, कौन सा लिखना यू वांट मी टू मार्क, ये है ना? ओके आई डू इट, नो प्रॉब्लम, ये हमारा हाथ में करेगा। इट्स सो सिंपल, विल डू इट बच्चों। ओके नाउ देखो, फोटो, अगेन द फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर टू टाइप्स? द फर्स्ट वन इज फोटोलिथोट्रॉफिक. व्हाट इज दैट बच्चों? फोटोलिथोट्रॉफिक. सर ये फोटोलिथोट्रॉफिक मतलब क्या है? मान लो इफ द बैक्टीरिया यूजिंग लाइट प्लस सम मिनरल्स टू प्रिपेयर फूड मटेरियल. क्या हुआ? शायद मेरा तरफ से कुछ गलती होगा बच्चों. आई लॉग इन लॉग आउट करेगा, ओके? बिकॉज इतना बार प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मे बी फ्रॉम माई साइड ऑल्सो सम मिस्टेक होता है ना बच्चों. प्लीज वेट फॉर लाइक 2-3 सेकेंड्स. आई विल कम बैक. आई लॉग इन लॉग आउट करेगा, ओके? अभी इश्यू सॉल्व? यस, अभी नो इश्यूज ना? यस यस. कभी कभी है ना, मेरा गलती भी हो सकता है ना, इसलिए मैं लॉग आउट करके लॉग इन किया. चलो now let us take photolithotrophic. बच्चों photolithotrophic मतलब if the bacteria preparing the food from light and minerals, then that is called as photolithotrophic. example क्या है? purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, etc. okay? ये सब मत लिखो, ये टाइम वेस्ट है बच्चों. दिस इज टाइम वेस्ट. दिस एग्जाम्पल्स ओनली याद रखो, ओके? whereas फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक, सर ये फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक मतलब क्या है? दे आर यूजिंग लाइट plus some organic chemicals for organic substances for the preparation of their food material, then that is called as what? Photoorganotrophic. example क्या है? purple non sulfur bacteria and green non sulfur bacteria. okay बच्चों? children, okay? okay, now the next one, chemotrophic bacteria. That means the organisms which prepare food material from chemicals. Understanding here, they use chemicals to prepare their own food material, then that is called as chemotrophic bacteria. example methane bacteria, iron bacteria, hydrogen bacteria, nitrifying bacteria, and sulfur oxidizing bacteria. So these are the examples.
दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके बच्चों, सब मत लिखो, टाइम वेस्ट होता है। सब मत लिखो, टाइम वेस्ट, बिल्कुल पूरा टाइम वेस्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग इट? यस, कीमो रिप्रेजेंट केमिकल्स, यस यू आर करेक्ट। ओके बच्चों, इज दिस क्लियर? कैन आई आस्क सिंगल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन में पूछता है। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो लिथोट्रॉफिक? मैं भूल गया। हु विल हेल्प मी? हु विल रिमेंबर मी? फोटो लिथो, अरे यार इसमें एग्जैक्टली में मंकी जैसे दिख रहे हैं। अरे हु टुक द स्क्रीन शॉट यार? फिर मैं स्क्रीन शॉट में मेरा मुंह देखो, एज इट इज मंकी जैसे दिख रहे हैं मैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, ओके ना बच्चों, टुडे वी विल स्टॉप बिकॉज टुडे वी हैव टेकन 4 टॉपिक्स। Sir, bacteria are in marsh more harmful to us. Sir, which bacteria is more? Heterotrophic bacteria is harmful. Okay. Autotrophic bacteria is not harmful. Heterotrophic bacteria. That means tomorrow's class we will read. Okay. Heterotrophic bacteria is very harmful. Autotrophic bacteria is not harmful. Okay. Sir, phototrophic, repeat. Phototrophic matlab the bacteria which prepare their own food in the presence of light. Understanding it? The bacteria which prepare the food material in the presence of light by using a pigment called as bacteria chlorophyll. Then that type of bacteria, it is called as phototrophic bacteria. ओके कल्पेश, समझ में ना? समझ में ना? Yes, okay. So today we took almost 4 topics. Okay, so we will we will stop here and we will continue tomorrow. Okay, okay, children. Bye. We'll meet tomorrow again. Bye. Sir, difference between phototrophic and philiotrophic? I don't know what is philiotrophic. I did not understand her question. Okay, chalo, we'll take tomorrow. Okay, no problem. Okay, bye.